Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for choosing my video. So today I'm going to give my first MA English IGNOU exam. तो मुझे उससे पहले बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी, अभी भी हैं, डर लग रहा था और डर लग रहा है. सो आई डोंट वांट एनीबडी एल्स हु इज़ गिविंग IGNOU का कोई भी पहला एग्ज़ाम एंड उनको किसी भी तरीके का डर हो जैसे मुझे लगा. इफ़ you know something, you should tell anybody if it can help them in any way. So I will show you throughout how I will go and give my exam and क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, how is the experience and माहौल कैसा होता है वहाँ पे. So stay tuned. So for my preparation, I used the notes, the online PDFs which are available on our LMS. हमें एक LMS का पोर्टल मिलता है, उस पे नोट्स जो थे मैंने उन्हीं को पढ़ के अपने नोट्स प्रिपेयर किए. If you clicked on this video, definitely either you are nervous, excited or maybe even scared of giving IGNOU exam because उसकी बहुत reasons है. A, you don't know the teacher. B, you never had the physical classes. So सारे डर, सारे problems valid है, बिल्कुल valid है. You will feel scared because if I tell you about my experience, I got to know about my exam 2 months ago and I was studying थोड़ा थोड़ा. Still मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ छूट ही रहा है, क्योंकि whenever I go through the PYQs मुझे ऐसा लगता है I know about this topic, but will I be able to write 6 pages or 5 pages on it? Because in my university in which I did my previous masters, I had a habit of writing on the point. Only जो मुझे जितना आता है, I know the concepts, I'll write it जितना मुझे समझ आता है. ये मेरे eyes swell हो गए हैं. My exam is in second shift which is 2 to 5 PM and मैं उठ गई थी अपने आप ही बिना अलार्म के at 7 AM. Although I slept at 2 or 2:33 ऐसे ही पे मैं सोई थी. I couldn't sleep more. सबसे important है, you have to be very calm. Every exam is about your performance, that how you give your performance in those 3 or 2 hours of exam or even 1 hour. So you should be confident for your performance कि मैंने जितना किया है I will perform great. There are a few tips I do. I always arrive the exam center an hour or 2 hour before because I believe कि हमारे अंदर डर तभी आता है या कोई चीज़ हमें समझ नहीं आती है जब हम उस चीज़ से अनफेमिलियर होते हैं. सो यू हैव टू फील रिलेटिव. आपको लगना चाहिए ये जगह मेरी है, सो आई कैन एस इट. सो वट एवर, अगर मुझे कहीं परफॉर्मेंस या कुछ भी होता है, एग्ज़ाम होता है, ऑलवेज गो 1 or 2 hour बिफोर टू मेक माई बॉडी एंड माई माइंड familiar with that environment. And I sit there and make myself very relative. I hope कि आपके काम है इसलिए I'm sharing. मैं क्विक रिविजन्स कर लूँगी and उसके बाद I'll go get ready. I don't know if it makes sense. So there are people like me who loves to revise again and again, and you cannot carry all of your books and all of that because I would suggest not to, क्योंकि उस टाइम में हमारा माइंड एकदम एंग्शियस रहता है and if we see so many books so we get more scared. So while revision only I just need 1-2 पॉइंट में पूरा आंसर लिखना. I just need this cheat codes type कि अगर मुझे ऐसा अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए मुझे रिविजन करना है, so I'll just go through this and my mind will be happy that yes, I've revised and I know everything. Just a tip. Now I will tell you one of the really important things कि आपको लेके क्या क्या जाना है. 3 चीज़ें बिल्कुल लेके जाना है, उसके बिना तो बिल्कुल मत जाना. आपका एडमिट कार्ड, स्टूडेंट आईडी और आपकी आइडेंटिटी आईडी जिसमें आप आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, और अपना पेंसिल, इरेज़र, ये सब कुछ भी लेके जाना. वहाँ पे आपको बाकी एग्ज़ाम्स की तरह नहीं मिलेगा. मैं ये वीडियो तो एग्ज़ाम के बाद ही एडिट कर रही हूँ. मैं एग्ज़ाम से पहले बहुत ज़्यादा डर गई थी और मैंने बहुत ही बार रिवाइज़ करी थी. जितनी बार रिवाइज़ करी थी उतनी बार डर बढ़ता जा रहा था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट उतना भी बड़ा कुछ था नहीं. सो हियर आई एम ऑल रेडी एंड सेट. मैंने सब कुछ रख लिया जो मुझे रखना इंपॉर्टेंट है. तो अब हो सकता है कि मैं ज़्यादा बातचीत ना करूँ, मैं थोड़े बहुत क्लिप्स आगे डाल के वॉइस ओवर कर दूँ, क्योंकि धीरे धीरे
it's coming, you know, closer, तो थोड़ा लगता है. So I will be putting clips and doing voice over. So luckily मुझको एक बहुत ही अच्छे रैपिडो भैया मिल गए जिन्होंने बहुत ही अच्छे से मेरे को सेफली मेरे एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचा दिया. नाउ व्हेन यू रीच द एग्ज़ामिनेशन सेंटर, सबसे पहले आपको अपना रूम नंबर और अपना फ्लोर चेक करना है. वो करने के बाद आप, जैसे मेरे को 30 मिनट्स पहले एंट्री मिलनी थी, इसलिए हम सबको बाहर खड़ा कर दिया था. सो मेरा 3rd फ्लोर पर था. मैं चलते चलते थक गई थी, नो लिफ्ट नथिंग, लेकिन मैं पहुंच गई. आपको लग रहा होगा मैं वीडियो बना रही हूँ, बट कुछ भी अलाउड नहीं था, फ़ोन सब कुछ रख दिया गया था. नाउ आफ्टर 2 hours ऑफ माई एग्ज़ाम फाइनली आई वॉज आउट. एंड एक प्रो टिप दूँगी, जितने कंफर्टेबल कपड़े पहन सकते हो ना प्लीज़ वही पहनना, वरना ना हो सकता है कि आप बहुत अनकंफर्टेबल फील करो, और जब आप अनकंफर्टेबल फील करते हो ना तब भी आंसर्स नहीं आते. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम.